అబ్రాడ్ కేవలం 18 లక్షలలో MBBS పూర్తి. ఫోన్ 8121333300. వెల్కమ్ టు క్రైమ్ కన్ఫెషన్స్. కొంతమంది పెరిగిన వాతావరణంలోనూ లేదా చెడు స్నేహంతో చెడుదారి పడతారు. మరికొంతమంది పెత్తందారులు పోకడలు నచ్చకో లేదో గ్రామీణ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న అరాచకాలు తట్టుకోలేకో మరికొంతమంది అడవి బాట పడుతుంటారు. ఆ విధంగా వెళ్ళిన తర్వాత కొంతకాలానికి తిరిగి జనజీవన శరం కలుస్తుంటారు. అంటే ఇక్కడ అన్నల వరకు తీసుకుంటే వాళ్ళు అక్కడ అడవిలోకి వెళ్ళాక అక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆదివాసీల కోసం గిరిజనుల కోసం పోరాటం చేసి వాళ్ళ కష్ట సుఖాలలో పంచుకుని అక్కడ అభివృద్ధి చేయడంతో కొంతమంది ఉంటే మరికొంతమంది చెడు సాహసంతోనో లేదా కుటుంబ పరిస్థితితోనో వేరే బాట పట్టి నేరాల బాట పెడుతుంటారు. ఆ విధంగా వెళ్ళి కొంతకాలానికి జనజీవన శరం కలుస్తున్న వారు పరిచయం చేసే ఈ కార్యక్రమంలో ఈ వారం మన గెస్ట్ ఒక మహిళ. సాధారణంగా మహిళలు అనగానే కొంతమంది గృహిణిగా ఉంటారు, కొంతమంది ఉద్యోగాలు చేస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేస్తున్న మహిళ పేరు చెబితే పాత పరిస్థితుల్లో అందరికీ భయం. ఆమె పేరు ఫరా ఖాన్. जब आप लोग मेरे पास ऐसे सवाल लेके आते हैं तो प्लीज़ ऐसे लोगों के नाम भी लाओ जो ऐसे सोशल वर्कर्स हैं जो डे नाइट लोगों के लिए काम कर रहे हैं. बताओ, मैं भी जानना चाह रही हूँ ऐसे लोगों को. ये एरिया MLA कौन आता, वो एरिया को मैंने टारगेट किया. एज यूजुअल मैंने पूरा मोंडो पहन के फेस पीस लगा लेके एक सोशल वर्कर के सरकार डोर टू डोर जाके मैंने चेक किया पूरों से. जैसा अपन कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन के वक्त कैंपेनिंग करने जाते हैं ना, डोर टू डोर भीख मांगते ना जाके ओढ़ दियो हमको, वैसा मैंने जाके पूरे एरिया में तकरीबन जितनी मेरी हिम्मत थी वो पूरे एरिया को मैंने सर्च किया. तो बिलीव मी दैट टाइम 6,000 to 7,000 లడ్కియా हैं. ఫరా ఖాన్ గారు అనగానే ఓల్డ్ సిటీలతో పాటు హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో ఒక భయం ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువగా రౌడీ షీటర్లే కాకుండా కొంతమంది వ్యాపారస్తులు కూడా ఫరా ఖాన్ అనగానే కొంచెం భయపడతారు. ఒక మహిళ, గృహిణిగా ఉన్న మహిళ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అంత డాన్గా మారారు, దాని వెనుకున్న కారణాలు ఏంటని ఆవిడని తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా మనం అందరూ అనుకుంటున్నాం గృహిణులుగా ఉంటారు, వ్యాపారస్తులు చేస్తుంటారు, ఉద్యోగాలు చేస్తున్న మహిళలు ఒక డాన్గా ఎందుకు మారారు? గతంలో పులాందేవి ఉన్న టైంలో ఉండే డాన్లు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఫరా ఖాన్ అనే పేరు చెబితే భయపడే వాళ్ళు ఎందుకున్నారు అనే విషయాన్ని మేడం నేను తెలుసుకున్నాం. ఫరా ఖాన్ గారు నమస్తే. నమస్తే. ఫరా ఖాన్ గారు కానీ సాధారణంగా నాకు 2010 వరకు తెలిసినప్పుడు ఒక హౌస్ వైఫ్ మౌలాలియా ప్రాంతంలో ఉండేవారు ఫరా ఖాన్. తర్వాత 2013 ఆ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఒక రౌడీ షీట్ రావడం, ఒక డాన్ అవ్వడం, పర్టికులర్గా తీసుకుంటే సైదాబాద్, మలక్పేట ఆ ప్రాంతంలో ఫరా ఖాన్ పేరు చెప్తే భయపడే రోజులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు కూడా ఓల్డ్ సిటీలో ఫరా ఖాన్ అనగానే కాకుండా ఫరా డాన్ అనగానే అందరూ ఐడెంటిఫై చేస్తుంటారు. ఒక మహిళ ఈ స్టేజ్కి రావడానికి కారణం ఏంటి? అంతమంది ఓల్డ్ సిటీలో అంతమంది రౌడీ షీట్ల మధ్య ఒక ఫరా ఖాన్ అనే వ్యక్తి ఎంత డేరింగ్గా ఎంత స్టెప్ తీసుకొని ఉంటున్నారు. ఎంతోమంది పొలిటీషియన్స్ను కూడా ఆవిడ భయపడకుండా, పొలిటీషియన్స్ ఒకవేళ థ్రెట్ ఇచ్చినా చాలా డేరింగ్గా ఉన్నాడు. కారణం ఏంటి? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పే ముందు ఫరా ఖాన్ గారి కుటుంబ నేపథ్యం, చైల్డ్ మొత్తం బాల్యం ఏ విధంగా జరిగింది చెప్పండి. ओके मुरली, आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन है मेरे लिए. एज यूजुअल हमेशा मेरे से मीडिया ऐसे ही सवाल करती है और मैं हमेशा यही जवाब होता है मेरा. जैसे कि कोई बच्ची जब उसकी स्टार्टिंग लाइफ होती है तो हर कोई का एक सपना होता है कि भाई कहीं से सुन लेती है वो कि भाई बच्ची हमारी डॉक्टर बनेंगी, भाई लॉयर बनेंगी, कोई अच्छा पोस्ट उसका अच्छी उसकी ब्राइट होगा फ्यूचर, शादी करेंगे तो कोई डॉक्टर से करेंगे, कोई बाहर देंगे, कोई समझ रहे हैं आप.
हर कोई किसी की माँ बाप की यही ख्वाहिश होती कि अपनी बेटी सिक्योर रहे, सेफ रहे। तो जैसा मेरा फैमिली बैकग्राउंड है उस हिसाब से जैसे मीडिया, पुलिस, सारे लोग जानते हैं। मेरा स्टार्टिंग ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ से हूँ और ये सारे हालात में मैं कैसा आ गई। धीरे धीरे सारे लोग को पता चल गया, इनफैक्ट पुलिस को, मीडिया को एंड ऑल पॉलिटिशियंस। सो पॉलिटिक्स से तो मेरे को ख़ास कोई इंटरेस्ट रहा नहीं, तो मैं कोई पॉलिटिशियन का नाम लूँगी नहीं। हाँ, बट चूँकि मेरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड जो है पुलिस डिपार्टमेंट से है, दैट्स वाई मेरे को हमेशा एक तकलीफ़ होती कि पुलिस जो भी वजह से, जैसा अब मैं आपके स्टूडियो में आई तो मेरे को पता चला कि आपका स्टूडियो है, ऐसा है, पूरा हर चीज़ का मेरे को पता चला। तो हर इंसान के बारे में मेरी पुलिस से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जैसा फ़रा के साथ करे किसी और के साथ मत करो। सच बोल रही हूँ, फ़रा थी, ये सारे चीज़ों को बर्दाश्त कर ली और पता नहीं और कितने लोग ऐसा सफ़र हो रहे हैं। लड़कियाँ भी प्रैक्टिकल बात सुनना है, वही बात मैं आके सबके सामने, पब्लिक के सामने हो, पुलिस के सामने हो, जो बात करी बेस्ड ऑन ट्रूथ, मगर वो बात मेरी किसी को हज़म नहीं होती, प्रॉब्लम क्रिएट्स करते हैं मेरे लिए। अब मैं आपको देख रही हूँ, अरे मुरली सर, राम राम, जय राम, आप मेरे भगवान, बहुत खुश हो आते, आप गार्डन हो आते, ऑफकोर्स होते ना। तो हर कोई यही चाहता मेरे से कि मैं सबकी जय माता करूं, जय जय करूं, जी हुजूरी करूं, वो मुझसे हुआ नहीं। तो इसके बिहाइंड में ये सारे स्टोरियाँ क्रिएट हुए, बट बिगिनिंग में जो हुआ उतनी सारी मैं आपको बातें तो बताने से रही, तो उतनी डिटेल्स आप तो मेरी कोई बायोपिक देख के ही पता चलेगा आपको कि फ़रा कैसा ये सारी चीज़ों में आ गई। सो एक रिलीजन फाइट थी ये, ठीक है, दो ग्रुप्स में फाइट चली। तो अब ऑफकोर्स अब मैं फैमिली के थ्रू एक ग्रुप की फॉलोअर थी, फॉलोअर क्या भाई, अब मेरी पूरी फैमिली अगर उनको फॉलो करती है तो मैं भी वन ऑफ मेंबर हूँ वो फॉलोअर्स की। उसी दरमियान में एक लफड़ा हुआ बहुत बड़ा, वो फाइटिंग में, दो ग्रुप की फाइटिंग में पूरा हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना पड़ा हमको। बहुत लंबी स्टोरी है, आई कांट से यू इन डिटेल। तो मैं इन शॉर्ट में आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि आपके सामने दो लोग फाइट कर रहे हैं अननेसेसरी, उसके बिहाइंड में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके बिहाइंड में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई लड़की नहीं है, नथिंग इज देयर, ओनली वी आर फाइटिंग फॉर इस्लामिक रिलीजन, ठीक है। सो जब ये सारे झगड़े शुरू हुए तो उसमें मैं एकदम से मेरे को सामने आ जाना पड़ा, क्योंकि ऐसे कुछ हालात बन चुके थे। तो वो जब वो टाइम से मेरा नाम लेडी डॉन रख दिया गया, बिकॉज मीडिया रखी। अब मेरा नाम फ़रा है, अब फ़रा तो हज़ार नाम है भाई, फ़रा नाम के कई लोग हैं, मशहूर भी है, कॉमन भी है। फ़रा बोले तो ज़रूरी नहीं है ना कि फ़रा हर कोई डॉन होना। तो ये डॉन बनाए, डॉन का नाम दिए गया। आप देखिए, आप आज की मैं प्रेजेंट स्टोरी आपको सुनाती हूँ। कई ऐसे लोग हैं, मवाली बोलो आप उनको, राउडी शीटर्स बोलो आप उनको, सो कॉल डॉन बोलो आपको उनको, बेचारे कई लोग तो अपने आप को डॉन बोल लेते अपनी खुशी, अपने आप को खुश करने के लिए, बट उनको थर्ड से फोर्थ पर्सन डॉन नहीं बुलाता। वाई? मैं ही डॉन क्या करी? डॉन अच्छा डॉन हूँ तो करी क्या डॉन? एक బిగ్ క్వశ్చన్. బట్ మీ డాన్ గురించి ఒకసారి మనం బ్యాక్ వెళ్ళే ముందు అసలు ఫరా ఖాన్ గారి యొక్క ఫ్యామిలీ ఏంటి, ఫాదరు మదరు, ఆ చైల్డ్హుడ్ ఏ విధంగా జరిగింది? वही बता रही हूँ ना, बिल्कुल हम लोग एक ऐसी फैमिली से मिडिल थे, क्लास फैमिली, हमारी रिलीजियस फैमिली है,
मेरे डैडी ईरान में कई टाइम तक मेरे डैडी ईरान में थे, फिर यहाँ पे आए। ये पूरा हैदराबाद में नहीं, हम लोग फ्रॉम 2 जनरेशन फ्रॉम ईरान। अच्छा। सो डैडी मेरे और मेरे रिलेटिव्स जो है सो मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे। उसके साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी डीलर्स थे, बहुत माने हुए लोग थे हैदराबाद के। गुड लक प्रॉपर्टी ऑक्शनर बोल के मेरे नाना के, मतलब मेरे ग्रैंडफादर, उनके बहुत फेमस था वो प्रॉपर्टी ऑक्शनर्स। सो ये तो मेरे डैडी पहले हैदराबाद में ऊपर मौलाली में तुम रखा? नहीं, मैं वी आर सो मेनी प्लेसेस वी हैव, बिकॉज हम लोग करते थे प्रॉपर्टी डीलिंग। तो हम लोग मौलाली में करे, मलकपेट में करे, मतलब ये ग्रुप पूरा काम करा। शालीबंडा है, समझे आप, ताड़बन है, कई ऐसे प्लेसेस, सरूनगर है, ऐसी कई जगह पे हम लोग प्रॉपर्टी एकदम से लेते। आज जो लोग कर रहे हैं वो हम बच्चे थे अब से देख लेते आए। आज जो लोग प्रॉपर्टियों के ऊपर सारे गेम्स खेल रहे हैं, अच्छा, हम तो छोटे थे खुद से देख रहे हैं प्रॉपर्टीज का। एनीवेज जी। फराह खान क्या पढ़ते? फराह खान ఏం చదువుకున్నారు? अच्छा, मेरा एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, मैं इंटरमीडिएट से ही हूँ। इंटर? जी हाँ, इंटर हूँ। ओल्ड सिटी में? नो, ओल्ड सिटी नहीं, न्यू सिटी से। न्यू सिटी। अच्छा, शादी आफ्टर देन थोड़े ही टाइम में मेरी शादी हो गई। ज़्यादा मेरी एज नहीं थी शादी के टाइम, वो भी एक कोइंसिडेंट था। खैर, एनीवेज प्लीज स्किप दिस क्वेश्चन एंड कैरी ऑन। మీరు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ మౌలాలికి షిఫ్ట్ అయినట్టు? नो बाबा, मैं जब छोटी थी, मैं समझती हूँ 6-7 साल की, 8 साल की, पता नहीं कुछ ऐसी मिडिल एज थी मेरी। मेरे नाना वहाँ पे कई एकड़ प्रॉपर्टी ले लिए। अच्छा। लेके वो पूरी प्लॉटिंग भाई ऐसे नीडी पीपल्स को भी दिए हैं हमारे लोग। समाजी लोग पहचानते कि मेरे जनरेशन टू जनरेशन हर किसी की हेल्प करना ही है, ठीक है। तिलक नगर बोल के है अंबरपेट में, वो पूरा तिलक नगर हमारे दादा का था, समझे आप। कई ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे पास तक भी नहीं आए, कई लोग कब्जा कर लिए, ऐसा कुछ चीज़ें हुए। खैर एनीवेज, तो मेरे डैडी बहुत ही सॉफ्ट नेचर के थे, और जब उनके सामने ये सारी चीज़ें आए तो वो सारे चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ होगा। सो देन उसके बाद से समझिए आप, अनदर वे कुछ था ही नहीं हमारे लिए, अब इसी को कंटिन्यू करना था। बहुत कोशिश की मैंने। सो आफ्टर ए फ्यू इयर्स बैक, अब जैसा मेरा नाम 2002 में, ये 2003 में ये कुछ नाम आया मेरा, उसके बाद 4-5 इयर्स मेरे को सफ़र होना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने मुझे बहुत, और मीडिया और पुलिस ने मेरे बहुत इशू बनाए। अब जैसा कि अब आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के लिए सारे प्रॉब्लम्स को फाइट करना कितना मुश्किल होता, ख़ास तौर से ये फील्ड में, कि अब एक मैं हूँ, हाईलाइट कर दिए हैं मुझको, और हर किसी की मैं फोकस में हूँ, कि हर कोई ये चाहता कि फ़राह वो गोल तक ना पहुँच सके, और फ़राह को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते जाएं और वो ही चीज़ों में उन्हें बिज़ी रहे, उसको कैसा बोलूँ मैं, सक्सेस ना मिले। तो मुझे क्या चाहिए भाई, सक्सेस तुम लोग हो जाओ, दुबई चले जाओ, पाकिस्तान जाओ, जहाँ बैठ के करते करो डॉनगिरी, आई डोंट केयर। मैं को ये सब चाहिए ही नहीं था, ठीक है। जो मेरे को, जैसा हमारे इस्लाम में होता है, ये हक़ और नाहक़, ये 2 ही रास्ते होते हैं हमारे लिए। जो इंसान हक़ पे होता है उसको ऑफकोर्स तकलीफ़ें उठाना पड़ता। इस्लाम हो, हिंदुज़म में हो, कोई भी रिलीजन में बताया जाता है कि नारी की आप उसकी रेस्पेक्ट करें, उसको उसका सही स्थान पे उसको रखें, चाहे वो किसी की बेटी हो, माँ हो, बहन हो, बीवी हो।
तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं एक समझाने से सारे लोग नहीं समझ सकते मुरली। सबको पता है कि क्या है दुनिया, क्या है, हम क्यों आए हैं, हमको करना क्या चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक ही बात बैठी कि मैं बोली जब मेरे साथ इतनी बड़ी फैमिली थी और जब मेरे पे टैग लगा, सारे लोग मेरे से दूर हो गए। डू यू अंडरस्टैंड कैसा बीता होगा हम पे, कि कोई जब मेरे लोग जानने की जबकि पता है उनको कि किस हिसाब से मैं ये फील्ड में आई, तब भी वो लोग डिस्टेंस रखे। तो पुलिस को क्या ज़रूरत थी कि इन्वेस्टिगेशन करती पुलिस कि फराह। एक ऑफिसर थे डीसीपी, कुछ नाम था उनका, मैं सॉरी भूल कितना साल में? 2002 में ओल्ड सिटी डीसीपी थे। हाँ। मुरली ऐसा ही कुछ नाम था उनका। हाँ? एक बिल्कुल शॉर्ट हाइट रहते, मुरलीधर कुछ नाम था उनका। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक केस में मैं बुक होके सरेंडर में हुई। और मज़े की बात ये रही मुरली, जब कभी भी मेरे पे केसेस फाइल होते थे सीधा सरेंडर जाके मैं पीएस में होती थी। पुलिस कभी कहीं से मुझे अरेस्ट नहीं करी, क्योंकि मैं बेतौन फैक्ट पे होती थी, ट्रांसपेरेंट हूँ। सीधा पुलिस में जाके बोलती भाई ये हुआ था एक्चुअल, मैं समझाना पुलिस को कि साहब वो नहीं हुआ था, ये हुआ था। ओहो सॉरी, अब जाके तो बच्चों को स्कूल को तो भिजा देती ना मम्मी, जाओ बेटे पढ़ लेके तो आ जाओ, वैसा जेल को भिजा दिया करती थी पुलिस। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया इशू बना ही हो जाती है। वो अगर पुलिस इसके अंदर, जैसा कि एक केस हुआ था मेरे पे 2007-8 इन्हीं कोई ईयर में, तो टास्क फोर्स मेरे को गन पॉइंट पे उठा के वहाँ पे मैं अपने कोई रिलेटिव के घर पे हूँ, टास्क फोर्स ने मेरी कार को पूरा राउंड अप कर लिया और जैसा ही मैं कार में बैठे मेरे को गन पॉइंट पे रोक लिए और मेरी पूरी गाड़ी को चिंधियाँ कर दिए कि मेरे पास आमलेशन है और मेरे पास रिवॉल्वर्स है, जो कुछ भी है। सीधा टास्क फोर्स ऑफिस को लेके गए। मीडिया पूरी 2007 में? हाँ 2007 में 7-8 आई थिंक सो, ये कोई ईयर में और उतना याद नहीं। ना ये अपना बेगम पे टास्क फोर्स। तो टास्क फोर्स उठा के लेके गई। अब मैं जो भी उनके साथ बिहेव करी वो तो डिफरेंट है, बोल के शेखियाँ बगाना है नहीं मेरे को। ऑफिस में मैं गई, सेम मेरे फेवरेट ऑफिसर थे वहाँ पे, उन्होंने मुझसे फ़र्स्ट टाइम मुलाकात की थी उन्होंने वहाँ। तो बोली सर ये मेरे को ऐसा किडनैप करके लाए जैसा लाए इन लोग, हाँ क्या है इसके पीछे? तो नहीं, बोले आपके लिए कोई कंप्लेंट था कि आपकी गाड़ी में आमलेशन है नॉल। बोली देख लो फिर मैं यहीं हूँ, एक काम करो सर मैं यहीं बैठती हूँ, मेरे घर पे भी चले आओ प्लीज़, हो सकता है मेरी कार में नहीं होऊंगा, मेरे घर पे होऊंगा। तो उन लोगों ने मेरे घर पे गया, मैं टास्क ऑफिस में बैठी हुई हूँ, पूरी टीम गई और पूरे मेरे घर जाके पूरा चेक करा। तो मेरी बेटियाँ जब छोटे छोटे थे वो लोग प्रे कर रहे थे और जैसा ही सीआई ने वो पोजीशन देखा, मेरी मम्मी से मिले, वो सेम वापस आ गए, आके सॉरी फराह बोल दिए कि हमसे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आपके पे बहुत फेक था, जो भी कंप्लेनर आपके इन्फॉर्मेशन दिया फेक था वो। सो देन अब क्या करेंगे कि अब पूरी मीडिया में आ गई बात, टास्क फोर्स उठा के लेगी तो कुछ उनको बताना पड़ेगा कि फराह को लाए क्यों थे, अदरवाइज़ बेचारी पुलिस बदनाम हो जाती। तो उन्होंने मुझे क्या रहता कुछ केस काउंटर केस डाल के मेरे को फाइन कर दे के, एबिट्स पे कोई है ना वो कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ पे बस जाके वहाँ जाके फाइन फिर दे के मेरे को छूटना पड़ा। फर्स्ट केस ఎక్కడ మేడం? फर्स्ट केस तो खैर मैं उतना सब सादा नहीं जाती प्लीज़, हाँ सॉरी, क्योंकि मैं जितना बोलना चाहूँगी आपके पास भी उतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी उतना टाइम नहीं। మీ హస్బెండ్ తో లైఫ్ ఏ విధంగా ఉండేదండి? देखो मुरली, ये सारे क्वेश्चन जो है मैं अगर आपको सुनाऊं तो बहुत प्रॉब्लम्स है। खैर फिर भी मैं बोलना चाह रही हूँ डियर पुलिस एंड डियर मीडिया को कि ये सारे चीज़ें होने से मेरी अपनी फैमिली, पूरी जो फैमिली है बहुत डिस्टर्ब हुई। अच्छा, एक बात समझ रहे हैं आप बात को कि अब आप एक हीरोइन बना दिए तो ऑफ कोर्स हर किसी को प्रॉब्लम ही होगा ना। अब आप मेरे साथ कहीं चलिए
पूरे सब साथ में, सब लोग देख के एकदम मेरे को इंटरटेन कर रहे हैं। अब आप लोग क्या फील करते? थोड़ा सा गिल्टी फील करते, अरे మేడం మీరు ఇప్పుడు కేసులు ఇవన్నీ తిరుగుతున్నప్పుడు పిల్లలు ఏమంటుంటారండి మీ పిల్లలు? एज यूजल बच्चे तो बहुत सफ़र हुए मेरे, बहुत, और इसका क्रेडिट पूरा जाता। अब मैं तो, मेरा भी रिकॉर्ड में है, मैं आज तक कभी ना मीडिया ना पुलिस पे कोई केस फाइल करी। अब पुलिस का नाम बार बार लेना क्यों पड़ रहा मुराद? आप लास्ट मेरे इंटरव्यू में भी सुने होंगे। 17 ईयर्स हो रहा मेरे पे केस, राउडी शीट ओपन होके 7-8 ईयर्स हो रहा, मेरे पे कोई पीटी केस भी नहीं है। पुलिस को क्या चाहिए था? जबकि देख रहे हैं कि पुलिस जो काम करना चाहिए फरा वो काम कर रही है, वुमेन्स की हेल्प कर रही है हर जगह जाके। ये लॉकडाउन में देखेंगे आप, कई लोगों की मैं हेल्प करी। अब मसला ये है कि करके बताना भी नहीं है, मगर नहीं बताया तो समझने वाले भी नहीं है। हमारे पास क्या है इस्लाम में, आपके साथ नेकी करे बताओ मत, वेस्ट हो जाती, मगर हमको हर चीज़ एक्सपोज करना पड़ा, क्योंकि ऐसा मुश्किल टाइम ला दिए लोग कि मेरी सेफ्टी बोलो या मेरी ह्यूमैनिटी बोलो या मैं क्या करती हूँ वो बताने के लिए सब चीज़ें बताना मेरे लिए ज़रूरी हो गया, मजबूरी। ఫరాక్ ఖాన్ గారు డమ్కి हाँ ऑफ कोर्स, धमकी, टॉर्चर, थ्रेट एंड ऑल, ये सारे चीज़ें फराह डॉन के साथ आते ही ना बाबा। मैं అంటే पूछना డమ్కి चाहती ఏ हूँ, విధంగా ఇస్తారండి? देखिए जैसा कि आप क्वेश्चन मैंने देखा आपका क्वेश्चन कि मैंने कोई बिल्डर्स को, कोई भी फाइनेंसर्स को एंड ऑल, ये सारे जो बातें हैं बिल्कुल बेकार बातें हैं। अच्छा, फराह के कॉल उन लोगों को गए हैं जो किसी बच्ची का बलात्कार करे हैं, हाँ, किसी बेटी के साथ जुल्म करे हैं, उसको थ्रेट करे हैं, उसको मारे हैं, जिसको घर के बाहर निकाल दिए हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती करें, ऐसे लोगों के लिए थ्रेट कॉल गए हैं फराह के, ऑफकोर्स गए हैं। डू यू नो कितने फैमिली सेटलमेंट फराह करी? कभी पुलिस पूछी में से, कभी मीडिया ने सवाल किया में से कि फराह कितने घर उजड़ रहे थे तुम्हारे तरफ से? आज अपनी फैमिली पूरी सब लोग आराम से अपने बीवी बच्चे सब एक अच्छी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। किसी को पता है? कभी मीडिया ने पूछी सवाल, कभी पुलिस ने पूछी कि फराह कितने सेटलमेंट कराई? फराह सेटलमेंट प्रॉपर्टीज़ के करा रही बोल के वो एक है उन लोगों को, फराह ने फैमिली सेटलमेंट कितने कराई? कभी अंदाज़ा है इन लोगों को? అది ఎవరి అది ఎక్స్పోజ్ అవ్వట్లేదు అది. शर्म आती है मुरली, ऐसी बात करने शर्म आती, क्योंकि ये लोगों ने तो मुझे डॉन बना दिया, अब इनका काम ख़त्म हो गया। अब इन लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं इनको एक इनकाउंटर हो जाए और इसका काम ख़त्म। ये अब बिल्कुल अपोजिट लाइफ जा रही फराह, और ऐसे काम कर रही कि पब्लिक देख रही, पुलिस देख रही, सोशल मीडिया में तो आए दिन आते रहते मेरे बारे में, फेसबुक चेक कर लो आप। जो मैं 90% मैं बताती हूँ, जो मैं करती हूँ सिर्फ 10% पब्लिक के सामने है, ठीक है? ఇప్పుడు మీ రోల్ సెట్లో మీ దగ్గరికి ఒక ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్ వచ్చింది. ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్ మేడం, నన్ను ఒక హస్బెండ్ నా హస్బెండ్ వేరే प्राउड माई सेल्फ, ये मामले में मेरे को खुद अपने आप पे फ़ख्र है कि ऊपर वाले ने ऐसे घर बना ले रहे हैं, बिल्डिंग्स बना ले रहे हैं, लोग बहुत बड़े बिल्डर्स बन जा रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं, मगर मैंने ये फील्ड के अंदर 1000% सक्सेस हुई हूँ। ऐसे कई फैमिली सेटलमेंट्स हैं जो बिल्कुल वो लोग डिवोर्स हो जा रहा था, बच्चे इधर, माँ बाप उधर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रहे थे जो ऊपर वाले ने मुझे वो चीज़ों में काम लिया और आज सब सेटलमेंट पूरे सक्सेस है मेरे। అచ్చా, అంటే మీ దగ్గర వచ్చిన ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది? मैं फैमिली सेटलमेंट्स कराने में 100% है। एक 2-3 केसेस में थोड़ा सर का अप एंड डाउन हुआ, ये नहीं बोल सकती मैं कोई भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ, बट मेरे पास नहीं हुआ। वो ऑलरेडी कहीं केस फाइला कर लेके सारे कुछ लफड़े करके आए थे, और उसके पीछे बहुत ही रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियन सपोर्ट करें उनकी। शेमलेस पीपुल, सच बोल रही हूँ, मैं अगर वही फराह होती तो नाम भी बोल देती, वो पॉलिटिशियंस का नाम भी बोल देती। సాధారణంగా ఫరాక్ ఖాన్ అనే ఒక కాయిన్ ఇంకో బ్యాక్ సైడ్
ఎక్కువగా ఫ్యామిలీస్ అందరికి మిక్స్ చేయడం, ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే అది ఇష్యూస్ క్లోజ్ చేయడం, తర్వాత ఎవరైనా పూర్ పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం చేస్తుంటారండి. ఈ కాన్సెప్ట్ రాకుండా ఈ డాన్ అనే దీన్ని ఎందుకు చూపిస్తున్నారండి? हाँ, अच्छा सवाल करे आप. देखो मुरली, हिस्सा क्या है, एक 5 लोग चोरी करने गए. चोरी करने के टाइम पे सबको ये सेटिस्फैक्शन है और पूरे सेटिस्फाई है कि फराह भी ये इसमें बराबर का हिस्सा लेंगी. तो जब मुझे पता चला कि ये चोरा हैं और मुझसे चोरी करवा रहे हैं, तो मैंने वहीं पे अपने आप को रोक लिया और उनको बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ ये चीज़ों में नहीं आ सकती, ठीक है. ऐसे कई लोग मेरे से जुड़ चुके हैं. तो वैसे ही सब एक कैसा बोल रही हूँ मैं, आत्मा फीलिंग आती है कि भाई फराह अच्छे काम करिए. अगर बोले आप मेरे को डॉन भी बोल रहे हैं, फिर फराह अच्छी भी कैसा बोलेंगे. आप मेरे को थीफ है बोल दिए, मर्डरिस्ट है बोल दिए, फिर उसके बाद आप कैसा वही आप ही कैसा लोगों के सामने बोलेंगे. तो या तो आप यहाँ गलत बोल रहे हैं या तो पहले गलत बोले थे. तो दैट्स वाई ना मीडिया ना पुलिस ये बात मेरे बारे में बोलती इसीलिए नहीं कि उन्होंने ही मुझे फराह डॉन बनाया. अच्छा. तो हाउ कैन से कि भाई नहीं फराह इज़ वेरी नाइस, फराह इज़ हेल्पिंग पुअर पीपल एंड ऑल, ये सारे बात आप वो कैसा बोलेंगे जो ऑलरेडी मेरे बारे में मेरे को मर्डरिस्ट हूँ और डॉन हूँ. ये सारे बातें जब मेरे पे बोल चुके, दैट्स वाई इसलिए कोई डिस्क्राइब नहीं करता मेरे बारे में कि फराह अच्छे काम करती है. आज वो औरतों के लिए लड़ती है. आज हर किसी के लिए कौन से भी टाइम पे मेरे लिए कॉल आएगा, अगर कोई प्रॉब्लम में है वो तो मैं ये शी टीम ये सारे टीम्स बनाए हुए हैं ना, मेरे को प्रूफ दियो. फिर आए दिन ये पेपर में क्यों नहीं आता भाई शी टीम ऐसा लड़की का रेप हो गया, कई ऐसे रेप केस हैं, क्या उनके ऊपर क्या हुआ, चार्जेस क्या हुए मेरे को बताइए आप. 1 2 दिन 3 दिन इशू बनता है मीडिया के अंदर, उसके बाद सब गायब. किसको आज तक फांसी हुई बताइए, रेपिस्ट को, मर्डरिस्ट को. आज पिछले कई दिनों से कितने मर्डर हो रहे हैं आप लोगों को पता है. మేడం, ఓల్డ్ సిటీలో మీ ఇంటికి ఒక లేడీ వచ్చారు, వచ్చి మేడం నాకు అన్యాయం జరిగింది, నాకు హెల్ప్ చేయండి, నాకు ఒక వ్యక్తి నన్ను టీచ్ చేస్తున్నాడు, నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు, ఒక లేడీ మీ దగ్గరకు వచ్చింది అనుకోండి, మీ ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ऑफ कोर्स इमीडिएटली एक्शन लेती हूँ मैं ये नहीं देखती कि वो लेडी के साथ कौन रिकमेंड लेके आया, नहीं. और मैं स्पेशली ऐसे ही लोगों की हेल्प करती हूँ. अच्छा. क्यों, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया मुरली कि औरत को देख के मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ. उन्हें कितना 100% उन्हें प्रॉब्लम है मुझे पता हो जाता है. అంటే వాడికి ఫోన్ చేసి వార్నింగ్ ఇస్తారా? हाँ ऑफ कोर्स दिया है मैंने, वार्निंग दिया है. वार्निंग तो देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुरली, ऊपर वाले का करम है. ये मामलों में जहाँ कहीं मेरा नाम होता खुद ब खुद आके बैठ जाते, कोई एक सेटलमेंट ही होता, समझा के भिजा देना. సెటిల్మెంట్ అంటే ఫ్యామిలీ వరకు సెటిల్మెంట్ మీరు క్లియర్ చేస్తారు, కానీ ఒక లేడీ ఇంకొక ఎవడో ఒక మెయిల్ నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు, రోజు ఈవ్ టీచింగ్ చేస్తున్నాడు అని మీ దగ్గరకు వస్తే बराबर वैसे लोगों के लिए भी मैंने किया है. అంటే వార్నింగ్ ఇస్తారా, वार्निंग పంచ్ ఇస్తారా? नहीं वार्निंग बस हो. आप अगर उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वार्निंग पे ही सुन लिए तो फिर पंच मारने की ज़रूरत क्या पड़ती बताइए. మీ దగ్గరికి ఒక పూర్ ఫ్యామిలీ వచ్చి హెల్ప్ చేయమని అడుగుతుంటారు, మీరు చాలామందికి హెల్ప్ చేస్తుంటారు. ఆ విధంగా ఈ కరోనా టైంలో మీరు ఎంతమందికి హెల్ప్ చేస్తుంటారు? ये देखो मुरली, अब मैं हेल्प करी अपने आप को हेल्प करी बोलते जाना, दैट इज़ रॉन्ग. दुनिया बोलना, पब्लिक बोलना कि इन्होंने हमारी हेल्प की, ये मेरा गोल यही है कि एक टाइम ऐसा आना कि लोग बोलने पे मजबूर हो जाना कि नहीं भाई फराह वाकई एक ह्यूमैनिटी रखने वाली वुमेन है, और जो भी औरत के साथ जुल्म होता उनके लिए ठहरने वाली वाकई फराह है बोलने, वही ख्वाहिश है मेरे को. उससे बड़ा कोई मेरे को कुछ नहीं चाहिए. మీకు ఓల్డ్ సిటీలో పూర్ పీపుల్స్లో మంచి గుడ్ విల్ ఉంది, మరి మీరు పొలిటికల్గా ఎందుకు? लीव इट ओल्ड सिटी व्हाई So, आर यू Hyderabad, अगेन सेइंग okay, Hyderabad. हैदराबाद सब कहो. హైదరాబాద్ में बोराबंडा ओल्ड सिटी इज वेरी शॉर्ट सिटी यू नो. చలో ఠీకే. హైదరాబాద్ में వరాఖాన్కి ఒక గుడ్ విల్ ఉంది, అంటే పూర్ పీపుల్కి ఎక్కువగా వరాఖాన్ హెల్ప్ చేస్తుంటారు.
మరి మీరు పొలిటికల్గా ఎందుకు ఎంటర్ అవ్వట్లేదు? अगर मैं बोलूँ थी फिर परेशानी की बात, ऐसे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ रही हैं और मैं मजबूर हो जा रही हूँ वैसे जवाब देने पे। अगर मैं वो सही आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगी तो बहुत परेशानी की बात है। डू यू नो दैट हुआ क्या? देखिए आप, मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करी, इतना ही बोल देती हूँ, उसके पूरा डिस्क्राइब नहीं करती मैं। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया, वो था मौलाली। और सेलेक्ट किया नहीं, मुझे ऑफ़र भी वही आया क्योंकि भैया वहाँ के प्रॉपर है, दैट्स वाई आप जाके वहाँ वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो। ऑलरेडी ये पार्टी वो पार्टी अलायंस है, 15 डेज़ का टाइम है। अब आप मेरे को एक इलेक्शन फर्स्ट टाइम लड़ रही हूँ, डर्टी पॉलिटिक्स फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, फर्स्ट टाइम वो एरिया में जाके एज ए पॉलिटिशियन, एज ए कॉर्पोरेटर इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट किया। तो स्टार्टिंग में ही कमिश्नर बुलाते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस बुलाते हैं, बुला के कहते हैं कि भाई फरा आप यहाँ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप बिल्कुल कोई दंगा फसाद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्वाइट करो, या तो ये सब चीज़ों से, या तो आराम से इलेक्शन में लड़ो जाओ। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे एरिया में कोई भी लफड़ा होना। ओके सर, यू कैन वेट एंड वॉच, बोली मैं कैसा इलेक्शन लड़ती हूँ। जिस बार मैंने फर्स्ट डे मेरा इलेक्शन का था, नॉमिनेशन डाल रही थी मैं, तभी मैंने कह दिया था कि मैं ये इलेक्शन हार रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से मुझे पता था कि वो एरिया में कौन मेरा सपोर्ट करते, कौन मेरा सपोर्ट नहीं करते, और ऑलरेडी वहाँ पे पूरा प्रिपरेशन था, वोटर आईडीज़ पूरे उनके हाथ में थे और रिगिंग किया उन्होंने। और जिस दिन से मैं नॉमिनेशन डालते हुए यूसुफ की दरगाह से निकली थी, डे 1 से साक्षी ने मुझे लाइव लिया, फिर TV 9 डेली मेरे पीछे मीडिया रहती थी, आप बिलीव करिए। तो इतने कॉर्पोरेटर्स लड़े, क्यों उनको जाके आप लोग इशू ने बनाए भाई मीडिया? सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे पे ही क्यों इतना फोकस करी मीडिया? क्यों, क्या चाह रही थी मीडिया में से कि भाई मैं पॉलिटिक्स में मत जाऊं, या मैं यही कैरी ऑन करूं, या मीडिया मेरी हेल्प करना चाह रही थी कि फरा को सक्सेस मिले, फरा एक पॉलिटिक्स में आ जाए, फरा को, समझ रहे हैं बात को? वो समझ नहीं सकी मैं, बट मैं ये समझ गई कि कोई ये नहीं चाह रहा था कि मैं ये फील्ड छोड़ूं ही नहीं। ఫరాక్ ఖాన్ లైఫ్లో బాగా ఫీల్ అయ్యే ఎపిసోడ్ ఏముందండి? बहुत दिन आए ऐसे, उसमें से एक दिन बोलती हूँ मैं। एक मर्डर केस में मुझको बुक किया पुलिस ने। वो मर्डर केस में बिल्कुल इनोसेंट थी मैं, क्योंकि वो केस तो एक्विटल हो गया, मैं कुछ बोलने से कुछ होता नहीं। उन्होंने अच्छा रिटायर हो गए अभी? 3 दिन कोशिश की कि वो सिर्फ घर पे जाके ऐसा पानी फेस पे डाल के आते थे और काम पे लगे रहते थे। अब एज यूजुअल पुलिस के बारे में तो मेरा हमेशा नेगेटिव ही थॉट्स रहे हैं। 3rd डे आके मुझसे कहा, सॉरी फरा, आई नो आप इसमें इनोसेंट है, यू आर नॉट इन दिस केस। मैंने पूरी कोशिश की, मैं सुबह से शाम तक ये कोशिश करता रहा कि आप ये केस में बुक नहीं होना, बिकॉज मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आप ये केस में नहीं हैं। मैंने बहुत कोशिश की, अपने हायर ऑफिसर से बहुत रिक्वेस्ट की, तब भी उन्होंने सिर्फ जो A1 आप थे, A4 मैंने बना सक रहा हूँ आपको, A1 से हटा के A4। तो तब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था इन PS में। मैंने बोला था कि भाई मैं मेरे साथ इतने लोग कि किसी को अच्छा लग ही नहीं रहा है कि भाई तू रहे, पता नहीं मेरे नाम से किसका क्या बिगड़ा, किसको क्या इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे नाम से, और मेरे अपने भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। मैं बेकार है ऐसी लाइफ कि कल कोई अपने हाथ से मेरा कुछ करने से अच्छा है कि मैं खुद मर जाना अच्छा है। ऐसे लोगों के साथ रहना तो मेरे से होने से रहा। तो वो बहुत ही मेरे लिए डिफ़िकल्ट टाइम था।
बट ऊपर वाले का करम है कि वो भी टाइम गुजर गया. ఫరాక్ ఖాన్ గారికి మంచి మూడ్ వచ్చిందంటే మంచి డ్యాన్స్ చేస్తారా, పాటలు పాడతారా? गाने गाती. గానే ఏం గానే ओह नो नो. थोड़ा हाँ, गाना तो गा सकती हूँ, कोई बुराई नहीं है गाना गाने में. सिंगिंग का मुझे बहुत शौक़ था. तो एक लाइन बोलती हूँ मैं, दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से. नहीं नहीं नहीं, ये लिरिक नहीं, सॉन्ग. नो नो नो, నెక్స్ట్ టైం ఇన్షాల్లా. చలో ఓకే. ఓకే, మీరు ఫంక్షన్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు, ఎక్కడికైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫరాక్ ఖాన్ వచ్చారు అనగానే అది క్రెడిట్గా తీసుకుంటారా, అది మైనస్గా తీసుకుంటారా? ప్లస్ ఆర్ మైనస్? नहीं प्लस. ప్లస్. రైట్ నౌ ప్లస్. ఓకే, ఫరాక్ ఖాన్ గారి గోల్ ఏంటి అసలు? అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు సొసైటీ కోసం ఎక్కడైతే పూర్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం, ఎక్కడైతే ఎడ్యుకేషన్ పిల్లలకు కావాలంటే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం, సెటిల్మెంట్ అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మీద సెటిల్మెంట్ చేస్తున్నారు, అది కాకుండా మీకు గోల్ ఉంది, ఆ గోల్ ఏంటి? अच्छा सवाल करे आप मुरली. आई रिस्पेक्ट यू, आई हैट्स यू. థ్యాంక్ యూ. मुरली, लास्ट 3 ईयर बैक मैंने ये वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, बेचारों का नाम भी भूल गई, खैर एनीवेज, उनके पास मैंने एक एप्लीकेशन दी थी. क्या मैं एक लैंड चाह रही थी, भाई आप मुझे लैंड लीज पे दियो. ऑलरेडी वो लैंड के ऊपर लैंड ग्रैपर्स बैठे हुए हैं. तो बहुत सारे लोगों के साथ जाके मैंने एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने भी बहुत उससे सहमत हुए और कहा कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका. मैंने बोला कि भाई ये तो करना चाहिए वक्फ बोर्ड को. मैं ये चाह रही थी मुरली, और कोशिश मेरी बराबर है इसके पीछे, बच्ची हो बूढ़ी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे कोई भी कोई एज फैक्टर नहीं है. मैं वो लोगों को जिसको मैं हमेशा देखती हूँ फुटपाथों पे, होमलेस पीपल, ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए मैं एक होम फॉर होमलेस बनाना चाहती हूँ. अब देखिए प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर मैं अकेले काम करने से नहीं, बजट भी चाहिए, प्लेस भी चाहिए, बहुत ही रेस्पेक्ट से, और होना ये चाहिए कभी ना कभी उनके कान पे जाएंगी ये बात. उनका जो प्रॉपर्टी पे जो उनका होटल है ना, वो सेक्रेटेरिएट के सामने, वो सेटलमेंट ओपेरा होटल वालों से अच्छा. मेरे लोगों ने ही किया था, करवाया था इसका, तब जाके इनकी होटल बनी वहाँ पे. खैर करवा ले सकते थे होंगे, खुरेशियाँ हैं, कर ले सकते. चाकुआँ बहुत रहते इन लोगों के पास. डू यू नो खुरेशी मीन्स? कुरैशी. हाँ, खसाब, खुरेशी से लोग. अच्छा. सो देन हमारे लोगों ने ही, इनफैक्ट मेरी फैमिली मेम्बर ने उनका सेटलमेंट कराया. तो मैं जाके उनसे रिक्वेस्ट की, सारे मेरा पूरा प्लानिंग बताई कि मैं कैसा चाह रही हूँ, क्या चाह रही हूँ, और मुझे प्लेस चाहिए, सारी चीज़ें. मैंने बोली कि भाई जो लैंड ग्रैपर्स है उनको मैं देख लेती हूँ, मुझे बस आप ये लीज पे दे दीजिए, इस पे मैं ये काम करना चाह रही हूँ. उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की. वो एटीट्यूड, माई फुट एटीट्यूड करने वाले मेरे को कतई नहीं पसंद. और मैं, आपकी तकलीफ़ है, मैं आपके डोर पे 10 बार आ जाती हूँ. ये भीख मांगने नहीं आती हूँ मैं. नाम मुँह से बहुत वर्ड आ रहा है मेरे ऐसे कि मैं बहुत ही रुक के बात कर रही हूँ, क्योंकि कैमरे के सामने हूँ, बहुत लोग देखेंगे ये वीडियो. वरना सच बता रही हूँ, दलाल मीन्स मालूम आपको, ब्रोकर. ब्रोकर्स भी डिफरेंट होते, टाइप होता अलग अलग ब्रोकर्स का. मगर सच बोल रही हूँ मैं, ये जो दल्ले हैं ना, दलाल, ये जो लोग औरत के ऊपर रहम खाने से, एक चाहे देखिए भाई, औरत की कोई मज़हब नहीं होता, इंसान का कोई मज़हब होता ही नहीं है. पहले देखा जाए तो इंसान तो एक नॉर्मल एक इंसान आया है दुनिया में. अब मेरे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और ले आके मैं
मेरे कोई नेबर के पास रखती हूँ जो हिंदुज़म से ताल्लुक़ रखते, वहाँ पलेगा बढ़ेगा तो अब उसको समझ में आएगा मैं हिंदू हूँ बोलेगा, उन कोई वहाँ का बच्चा मेरे पास पढ़ेगा सोचेगा मैं मुस्लिम हूँ। तो हमारे कोई मज़हब के अंदर ये बात नहीं बताया कि डिवाइड एंड रूल करो। मज़हब को बीच में लेके आके मेरा मैसेज है, इम्पोर्टेंट मैसेज है ये, कि ये जो आज का जो पूरा चल रहा है क्लाइमेट, ये जो हिंदूज़म मुस्लिम हिंदू बोल के जो फसादा कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, और ये कॉमन लोगों के ऊपर कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जा रही और हर किसी के अंदर फीलिंग्स आ जा रही, और ये स्टार्ट करे कौन? पॉलिटिशियंस। ये नहीं था हमारे पास। हिंदुस्तान के अंदर हर किसी को बोलते थे गंगा जमुना की तहजीब है, ये लोग सब मिल के भाईचारगी में रहते, और बहुत हम फ़ख्र से बोलते थे बी इंडियन। हम सबको ये बोलते थे कि भाई हमारे पास नहीं भाई हम सब एक हैं। बट कितना कमीनापना करे देख रहे हैं। इससे बड़ा प्रूफ क्या होना कि आज मैं आपसे मिलने से पहले आप मेरा नाम पूछते, मैं आपसे नाम पूछती हूँ, ठीक है। अब लगता है कि कोई अगर मुस्लिम नेम है तो आई एम सिक्योर, अगर कोई हिंदू नाम है अरे इसके दिल में क्या फीलिंग है कि ये टाइम आ गया है। और इसको लाने वाले कौन है बताओ? थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए आम जनता को जनरेशन टू जनरेशन को बर्बाद कर दिए। दूर नहीं है, ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा क्या बोलना चाहिए आप, आज नहीं कल ये ऊपर वाला इनका जवाब तो वैसे ही देगा, तबाह बर्बाद हो जाएंगे लोग। बट अफसोस ये है कि आज हमारे जो सोसाइटी बन चुकी है, हमारे जो मासूम बच्चे बर्बाद हो रहे हैं इसके पीछे, समझे आप। इसके बहुत सारे बातें जो मैं इतना नहीं बता सकती, बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ इतना बड़े मेरे मकसद के पीछे किसी ने सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। और एज ए पॉलिटिशियन जिस बार मैंने कॉन्टेस्ट किया, जो मेरा नाम देखते ही परेशान होकर मेरे को फ़ौरन हरा डाले। क्यों? आज इन्हें ये बन गई, कल इसके पूरे डोर्स ओपन हो जाते, इन्हें किधर भी निकल जाती। उनका फियर था एक मेरे लिए, दैट्स वाई मेरे को हराए। तो मैं क्या करी, छोड़ दी, मेरे को ज़रूरत नहीं था। मैंने एक चांस लिया था, क्यों मेरे लिए नहीं लिया था, आई स्वेयर मैंने उन गरीबों के लिए लिया था कि भाई ऑफकोर्स जब इंसान कुछ करता तो उसको पहले अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। तो वो छोड़ दी मैंने। दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। राय हक कुल के एक है वो ग्रुप की, दक्कन महिला वेलफेयर एसोसिएशन। मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन है जो औरतों के लिए काम करती है, बच्चियों के लिए करती है। और ऑफकोर्स मेरे को बहुत फ़ख्र है इस बात का कि मैंने 14 ईयर से ये ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ विदाउट एनी सपोर्ट। किसी की सपोर्ट नहीं हमको इसके पीछे। और एक बात, फ़रा जहाँ कहीं जाती वो अपना नाम लेके जाती, किसी के नाम की फ़रा को ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर वाले का करम है। आज इतने साल के बाद ये बात कर रही हूँ मैं, वो भी बहुत ही प्राउडली, कि मैं सक्सेस मैं खुद हूँ, मेरे पीछे कोई सक्सेस नहीं है। थैंक फॉर गॉड, थैंक टू गॉड। फराह खान बायोपिक पिक्चर ఎప్పుడు రాబోతుంది? हाँ, बहुत कोशिशें चल रही हैं, कई प्रोड्यूसर्स बात कर रहे हैं इसके पीछे, डायरेक्टर्स एंड ऑल। सो मैंने कोशिश यही किया कि भाई नहीं, कभी तो मैं इससे एग्री नहीं थी कि मेरी कोई मूवी बने। बट सम टाइम कुछ लोगों की बातें मेरे समझ में आई कि जैसा अब आके आपके स्टूडियो में मेरे को पूरा सारा लगभग पूरा एक मेरी बायोपिक ही चल रही है ये, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मेरी बायोपिक इन पर्दे पे आएंगी तो लोग को समझ में आएगा, शायद ये पुअर पीपल को, कि भाई फराह एक्चुअल में है क्या, उसके साथ क्या हुआ था। तो ऐसे कई फराह हैं जो सुसाइड कर लिए हैं, समझे आप। ऐसे कई फराह हैं जो आज पता नहीं उनका कोई नामो निशान नहीं है, जो फराह के साथ हुआ है। ऐसे कई लड़कियों के साथ बहुत कुछ हो चुका है जो शायद दुनिया में है भी नहीं अभी। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं वैसे लोगों के लिए काम करूं, वैसी लड़कियों के लिए काम करूं, उसके पीछे जाने नहीं दे रहे। भाई मैं ये पूछना चाह रही हूँ गवर्नमेंट को, और जो अब पॉलिटिशियंस हैं उन सब तो चारों हाथों, एज यूजुअल हमारे 2 हाथ होते हैं, उनके 4, 8, 10, माता के सर के 10 हाथ होते हैं। उतने हाथों से वो लोग कमा रहे हैं। कहाँ जा रहा भाई पैसा आपका? आप क्या कर रहे हैं? मेरे को कोई एक जगह बताओ आप जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं आप लोग, औरतों के लिए 24 आवर्स आपके लिए सर्विस है,
कोई लड़की को कोई प्रॉब्लम है तो मैं कभी भी आश्रम में आ सकती। बताओ ना मुरली सर प्लीज, जब आप लोग मेरे पास ऐसे सवाल लेके आते हैं तो प्लीज ऐसे लोगों के नाम भी लाओ जो ऐसे सोशल वर्कर्स है, जो डे नाइट लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बताओ, मैं भी जानना चाह रही हूँ ऐसे लोगों को। मेरे पास ना पुलिस की सपोर्ट है, ना कोई पॉलिटिशियन की है, ना कोई बड़ा कोई हैंड मेरे पीछे है। उसके बाद मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ, तुम इतना सब कुछ रख के कर रहे हैं क्या भाई? क्यों उनसे सवाल नहीं करते आप लोग? एक एमएलए का क्या कितना बड़ा बजट होता पता है आपको? अगर एक एमएलए, अगर मैं किसी एक एरिया के एमएलए हूं तो मैं पूरी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को ग्रीन कर दे सकती हूं। कोई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भूखा नहीं रहेगा, हर किसी को मैं जॉब दे सकती हूं। मैं जॉबलेस कोई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रह सकता। इतना मैं कमा सकती हूं, इतने लोगों की मैं हेल्प कर सकती हूं। फिर क्या है ये एमएलए जो आज पावर में है? आप क्या बोल के जनता से जीत के आते हैं? बताओ मेरे को, सड़कें ले आके बताओ मैं आपको। औरतों को देखेंगे आप, बच्चियों को देखेंगे जो घरों में है, जिसके पास पैसा नहीं होने से शादी नहीं हो रही है, एजुकेशन नहीं है उनके पास, माँ बाप के पास पैसा नहीं है। बात मेरी समझे आप? तो ये हकीकत देखो, मैंने एक एरिया को, जैसा कि ये एमएलए कॉलोनी है, क्या है ये, बंजारा हिल्स है, ये एरिया एमएलए कौन आता, वो एरिया को मैंने टारगेट किया। एज यूजुअल मैंने पूरा मोंडो पहन के, फेस पीस लगा लेके, एक सोशल वर्कर के सरकार डोर टू डोर जाके मैंने चेक किया पूरों से। जैसा अपन कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन के वक्त कैंपेनिंग करने जाते हैं ना, डोर टू डोर भीख मांगते ना जाके, ओढ़ दियो हमको, वैसा मैंने जाके पूरे एरिया में तकरीबन जितनी मेरी हिम्मत थी वो पूरे एरिया को मैंने सर्च किया। तो बिलीव मी, दैट टाइम 6,000 to 7,000 लड़कियां हैं जिसकी शादी नहीं हुई, एजुकेटेड नहीं है वो, समझे आप? कई लड़कियां धंधा करने पे मजबूर है। फिर वो एरिया के एमएलए इतनी नाक लेके चलते, मेरे को यकीन मानो, अब कुछ बोलते केस बुक कराते मेरे पे, समझे? थिनर्स क्या बोलते हैं, वो नाम बोलना चाह रही हूँ, वो नाम ली तो अच्छा नहीं लगता, इंग्लिश में कोई भी गाली दे सकते। थिनर्स अच्छे हैं, इनसे तो वो लोग अच्छे हैं, सच बता रही हूँ। उनका कोई ईमान होता है यार। आज बताओ मेरे को क्या चल रहा है सारे लोगों में। मैं बच्चे के लिए गई थी, बता रही हूँ मैं, वो जेल में कई बच्चों को डिफरेंट प्लेसेस से उठा के ला ली, कोई उसका वारिस नहीं है, कोई उसको जाके छुड़ाने वाला नहीं है। एक करता धरता आया बेचारा, वो मैं नामा लिख के गया गैब, जैसा मीडिया को लेके मैं पहुंची, हैबत खा के एक बच्चे को छोड़ दिए, बाकी के पूरे बच्चे अंदर है। कितों के लिए मैं क्या करूं बोलो आप? मेरे ना मेरे पास राइट्स, ना मेरे पास पावर्स, ना मेरे पास पैसा, क्या फिर बंदूक उठाऊं, गोली मार भेजे में बोल के अच्छा दिखेगा? अब मैं इतना सब साधारण कामा कर रही हूँ, लोगों की सोशल वर्किंग कर रही हूँ, हेल्पिंग कर रही हूँ, मीडिया स्लीपिंग, पुलिस स्लीपिंग। अब अगर मैं एक पाँव ऐसा रख के धन बोल के उठ के ठहर के गन हाथ में लेते, पूरे नाचने लगते, तका थई था। क्या नॉनसेंस है यार ये लोग। ఫరాక్ ఖాన్ గారి ఇంట్లో మంచి వంట ఏం చేస్తారండి? పిల్లల కోసం ఏం చేసి పెడతారు? मैं अच्छी चीज़ तो कुकिंग ज़्यादा नहीं करती, बट करती हूँ। मैं ज़्यादातर मेरे बच्चों के साथ तो मैं बिल्कुल फ्रेंडली रहती हूँ। बिरयानी, आई डोंट लाइक बिरयानी। समटाइम बनाती हूँ मैं मीठा, खीर खाती हूँ मैं। सो बिरयानी नहीं पसंद सच में। मेरे को दाल और फ्राई मटन एंड चावल पसंद। खैर एनीवेज लीव इट। सो तमाम जितने भी आपके व्यूवर्स हैं उनको मैं तो थैंक बोलना चाहूँगी। आपके चैनल को आज तक मेरे को, जो कि आपके चैनल का नाम नहीं मालूम, क्या है नाम? आई ड्रीम। हाँ, आई ड्रीम, वाओ, सो ब्यूटीफुल नेम। सो आई ड्रीम की मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों ने मुझे। ఫైనల్ క్వశ్చన్ మేడం, ఫైనల్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఫరాక్ ఖాన్ గారి లాస్ట్ గోల్ ఏంటంటే, ఇప్పటివరకు మీరు చెప్తున్న ప్రకారం పూర్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయాలి, మీ సొసైటీ మీరు పెట్టిన ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా చాలామంది ఫ్యామిలీస్ అందరికీ సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి, ఎడ్యుకేటెడ్ చేయాలని మీ ఇంటెన్షన్. ఆ ఇంటెన్షన్లో మీ రీచ్ అవ్వడానికి ఏవైనా హడల్స్ వస్తే, ఎవరైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తే
అవన్నిటి ఫేస్ చేయడానికి మీరు రెడీగా ఉన్నారా? मेरी गोल के लिए मेरी आखिरी सांस तक पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो महिला, जो भी लड़की हो, औरत हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी उम्र से हो, उनको अगर मेरी नज़र में मेरे तक अगर ये बात आ जाएंगी कि उन्होंने थ्रेट हो रही, उनको कोई ससुराल में परेशानी हो रही, उनके हस्बैंड से हो रही, या कोई भी तरीके से हेल्पलेस है उन्होंने, उनकी मैं हेल्प करना, ये मेरा गोल रहा है, वही करते आ रही हूँ और आखिरी दम तक वही करूँगी। और स्पेशली वुमेंस को, ख़ास तौर के लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी, ये मेरा मैसेज है उनको, कि जब तक आप खुद को इज़्ज़त ना दो, कोई आपको इज़्ज़त नहीं देने वाला। अगर आप अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है आप लोग यूनिटी बनाओ, एक दूसरे से जुड़ के काम करो। आप कोई कॉलेज में अगर होते हैं तो पूरे कॉलेज में ग्रुप मेंटेन करो, सारे लड़कियां एक दूसरे से ऐसा एक कैसा बताऊँ मैं, ऐसे दूसरे को हेल्प करना चाहिए। अगर एक लड़की के ऊपर कोई प्रॉब्लम आया तो 100 बच्चियाँ ठहर जाना चाहिए उसके लिए। तो कहीं तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा फराह के पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद अगर अपने आप को उस मजबूत बना दिए हैं, उतने बोल्डनेस बन जाएंगे तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सो बोल्डनेस बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपके पास यूनिटी होना ज़रूरी है। क्यों यूजुअली होता है कि एक लड़की दूसरी लड़की से जलती है, ये बहुत कॉमन बात है, बट ये चीज़ सिर्फ बर्बाद करने के और कोई चीज़ काम में आने वाली है। उन्हें खूबसूरत है, आप नहीं है तो उसे जलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोग मोहब्बत से एक दूसरे से जुड़े रहो, आप लोग ऐसे बन जाओ कि अगर आपके पड़ोस में भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप विथिन ए सेकेंड्स उनके लिए जाके ठहर जाओ। सिर्फ आपकी मेजॉरिटी ही बहुत बड़ा पावर है, आपको देखते ही लोग घबरा जाएंगे। आप कभी भी याद रखो, सिंगल किसी से फाइट नहीं कर सकते जब तक आप में यूनिटी ना हो। जब आप एक साथ यूनाइट हो जाएंगे तो कोई भी आपके सामने आके नहीं ठहर सकेगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है और ये मेरी आप लोगों को सबसे बड़ा मैसेज है। आप लोग जितना हो सके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाओ, डेली अपने आप को कैसा बताओ, एक्सरसाइज करो, जूडो करो, कराटे, वीकली टॉयस करो, आप में खुद ब खुद एक हिम्मत आ जाएगी। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जब आप लेंगे, ये मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ मेरी ऑफिस पे, और मेरे जो मेरे सर थे जावेद सर जूडो के, वो बहुत फेमस थे। तो मैंने कॉलेजेस में जाके बच्चों को ख़ास तौर से मैं अपने तौर पे जाके वहाँ पे पूरे लोगों को काउंसलिंग की, वहाँ पे प्रोग्राम्स करवाए कि लड़कियाँ ये देख के सीखे। तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंसान में एक पावर आ जाता है, एक सेल्फ डिफेंस जब इंसान करना आ जाता है उसको, तो एक सेटिस्फैक्शन, एक कैसा बोलूँ मैं, अपने आप पे भरोसा आ जाता है बहुत बड़ा। वो कहीं भी फाइट कर ले सकता। तो फाइट करना ज़रूरी नहीं है, मगर अपना डिफेंस तो करो। आप कॉलेज जाते, स्कूल जाते, एक लड़की का कहीं कोई रेप हो गया था, जो लड़की स्कूल से आ रही थी या कॉलेज से आ रही थी, उसका रेप हो गया था। मैं समझती हूँ उन्हें डिग्री फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, क्या हो उसके डिग्रीज, कहाँ गए उसके डिग्रीज, जला के राख कर दिए उनको। इंसान की औरत और औरत की जान और इज़्ज़त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती, तो आप उसको डिफेंस करना सीखो। और ये डिफेंस करने के लिए आप इसके साथ ही साथ अपने आप को जोड़ो, एक दूसरे से बनाओ, दोस्ती बनाओ। समझ रहे हैं आप? जितने ज़्यादा आपका ग्रुप बढ़ेगा उतना पावर आपका बढ़ेगा। ये मेरा अपना कैसा बोलूँ मैं, ज़ाती तजुर्बा है और बहुत अच्छी सलाह है सबके लिए, बहुत अच्छा मैसेज है कि हम अगर दूसरों को नहीं चाहेंगे तो कोई हमको नहीं चाहेगा। आप सबको चाहो, सब आपको चाहेंगे, ऑफकोर्स चाहेंगे। तो बहुत खुशी हुई। अब मैं आपसे परमिशन चाहती हूँ, ख़त्म करेंगे अब अपने इंटरव्यू को। बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ बात करके, और मैं चाहूँगी कि जितने लोग ज़्यादा ये देखेंगे और आप लोग इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके थोड़ा सा इसको ज़्यादा शेयर करो, और इंशाल्लाह। ఫరా ఖాన్ గారు ఒక గృహిణి అనుకోని కారణాల చేత ఒక కేసులో రావడంతో ఆమె మీద ఒక ముద్ర వేశారు. తనపై రౌడీ షీటరు అని కాకుండా కొంతమంది ఫరా డాన్ అని పెట్టడం వెనక మీడియాతో పాటు పోలీసు, పొలిటీషియన్స్ ఉన్నారు అని ఆవిడ చెప్తున్నారు. ఏదేమైనా సరే ఈరోజు ఫరా ఖాన్ గారు
పేద ప్రజల కోసం, పేద ముస్లిం మహిళల కోసం, యువత కోసం, అంటే ఇక్కడ ముస్లిము హిందూ అని కాకుండా అందరికీ కూడా సరి సమానంగా ఎవరైనా సరే అన్యాయం జరిగితే అర్ధరాత్రి కూడా తన ఇంటికి వచ్చి తలుపు తడితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ వెనక నిల్చుంటాను, వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటున్నారు. డక్కన్ మహిళా ఫౌండేషన్ ఒక సంస్థ ఉన్నారు. దాదాపు 14 సంవత్సరాల నుంచి సంస్థ నడుపుతున్నాను. ఎవరికైనా కష్టం వస్తే ఆ సంస్థకు రండి, ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ చేస్తాను, మీకు అందరికీ ఎప్పుడూ అండగా ఉంటానంటున్నారు ఫరాక్ ఖాన్ గారు. అంతేకాకుండా ముస్లిమ్స్ కాదు, హిందువులు కాదు, ఏ మహిళ అయినా సరే ఖచ్చితంగా డిఫెన్స్ నేర్చుకోండి, ఎదిరించండి, చదువుకోండి, కష్టపడండి అంటూ ఆమె సూచిస్తున్నారు. ఇది ఈ వారం ఫరాక్ ఖాన్ గారితో ఎక్సలెంట్ ఇంటర్వ్యూ. వచ్చే వారం మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు నమస్కారం. డాక్టర్ అబ్రాడ్ కేవలం 18 లక్షలలో MBBS పూర్తి. ఫోన్ 8121333300. మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని. Please subscribe. ఐ డ్రీమ్స్ For more videos, Subscribe. I dream. Please subscribe for more videos. I dream. I dream. For more videos. Subscribe, I dream. Please subscribe. సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్. Do subscribe. I dream. ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Do watch I dream.